Hello and welcome to Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. My dear educators, let's discuss multi-sensory learning today. It is a pedagogical approach, it is a pedagogical strategy to enhance, to effectively implement inclusive education. Now, what is multi-sensory learning? As we have been talking about various other pedagogies, till now, we have talked about peer tutoring and we talked about cooperative learning strategies. Today, we shall discuss multi-sensory learning, another strategy to foster inclusive education in the classes. So, my dear educators, as the name explains, and it is very, very clear from the name multi-sensory. Multi-sensory is made up of two words, multi and sensory. Multi means more than one. Sensory, that is related to our senses, जो हमारी senses से related है, right? So वो concept जो multi-sensory teaching का है, that was given by Dr. Samuel Orton and Dr. Anna Gillingham in 1930. So it is also known as Orton-Gillingham method or maybe multi-sensory teaching. Involvement of multi-senses, more than one senses. We have got four senses, as you know very well: sense of touch, sense of hearing, sense of sight, sense of speech and sense of smell. अगर हम अपनी एक से ज्यादा सेंस को अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हैं, बच्चों की इन सेंसेस को इन्वॉल्व कराते हैं थ्रू वेरियस टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज, तो उससे क्या होता है बेनिफिट? लर्निंग इफेक्टिव होती है, learning is deep also, learning is related to real life too, right? And वो lifelong learning रहती है, we retain it for a longer period of time. So as it is very, very clear to you that multisensory, it involves more than one of our bodily organs, more than one senses at a time. Simply put, multisensory teaching is a teaching that is done in such a manner that it appeals to all our five senses. Let's take an example, my dear educators. As see, अगर हमने क्लास में बच्चों को familiar कराना है with some of the objects, just take an example of an apple. If I just show a picture of an apple, right, they will just see the picture, they will not be having a clarity about what kind of a fruit it is, how does it look like, what is the color, what is the smell, what is the taste, right? But if I bring a real apple in the classroom, I ask my children to observe it, to touch it, to feel it, to take a bite, taste it, to smell it. So I will be involving their more of senses. तो वो उसको कैसे retain कर पाएंगे कि एप्पल एक फ्रूट है जिसकी शेप ऐसे है और टच करने पर थोड़ा हार्ड है, उसके कलर जो डिफरेंट वेरिएशंस में ये आता है, इसकी स्मेल कैसी है, उसको रिलेट कर पाएंगे, उसका टेस्ट कैसा है. सो उसको भूलेंगे नहीं, वो याद रखेंगे, राइट? डीप लर्निंग होती है. मल्टी सेंसरी टीचिंग इज अ टीचिंग दैट involves more than one sense, right? As I have given you an example here. So my dear educators, this is how we will be able to involve more than one sense. Though it's not possible to involve all the senses in all the chapters, all the topics, all the subjects, but at least we should try to involve more than one sense for a deeper understanding of the concept. Also, to cater to the needs of varied learners, राइट? हर एक को लर्नर का जो सीखने का, समझने का, चीजों को प्रिसीव करने का जो तरीका है, जो मेथड है, वो अलग होता है, राइट? किसी में एक से ज्यादा सेंसेस के थ्रू जब हम लर्न करेंगे तो ऑब्वियसली वो ज्यादा देर तक हम उस चीज को समझते हैं, ज्यादा उसको अंडरस्टैंड करते हैं. बट हमारे जो मेंटल प्रोसेसेस हैं कि चीजों को याद रखने के जो तरीके हैं, कई बार निमोनिक्स बना के करते हैं, हम इमेजेस के थ्रू याद रखते हैं, कोई रिदम में, म्यूजिक में, साउंड के थ्रू, जैसे हमने टेबल्स लर्न कर लिए, ठीक है, वो म्यूजिकल फॉर्म में, राइमिंग फॉर्म में बहुत जल्दी होते हैं. कोई चीज को रिकॉल करना है तो इमेजरी के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू होता है. तो ज्यादा से ज्यादा सेंसेस को हमें इन्वॉल्व करना चाहिए. So multi-sensory learning में, as I've already explained, right, by providing multiple ways to learn, it gives every student in the class a chance to succeed. Like adults, children take information about their world in a variety of ways. Auditory, through ears, through listening. Visual, through their eyes. Eyes के through हम कितना perceive करते हैं. Tactile, through touch.
टच के थ्रू हम समझते हैं, उसको याद रखते हैं। किनेस्थेटिक थ्रू बॉडीली मूवमेंट्स, राइट? टच में और मूवमेंट में देयर इज डिफरेंस, राइट? एक सिर्फ टच किया है, फील किया है, उसको महसूस किया है और खुद उसमें पार्टिसिपेट किया है, मूवमेंट के थ्रू उसको हमने उसका एहसास किया है, उसको हमने समझा है। नाउ रिसर्च सेज दैट जो हम सुनते हैं उसका हमें 10% जो है वो याद रहता है, उतना ही हम उसको रिटेन कर पाते हैं। एंड जब हम सुनने के साथ साथ देखते भी हैं किसी चीज को तो 30% हम रिटेन करते हैं। एंड अगर हम हियरिंग के साथ, सीइंग के साथ बोलते भी हैं, से ऑल्सो, तो हम 40% जो है वो कंटेंट रिटेन करते हैं। बट इफ वी हियर, वी सी, वी से एंड वी डू टू, then 70% of the content that we come across, we retain it, right? So multisensory teaching, it involves use of a visual, auditory, tactile, that is kinesthetic, as well to enhance memory and learning of the written language as well. So we need to engross our learners in different senses, through the different senses in the teaching learning process, right? So that they will be able to understand better. एंड सिर्फ अंडरस्टैंडिंग तक ही नहीं रहेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के। मेरी अंडरस्टैंडिंग के कहने का मतलब, आई मीन दे विल बी एबल टू रिलेट द सेम, एग्जामिन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, रिलेट करेंगे, एंड दे विल बी रीचिंग एट द क्रिएशन लेवल। सो मल्टी सेंसरी लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? लेट्स टॉक अबाउट ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक्स. It involves the use of our senses. This is its characteristics. It focuses primarily on visual, auditory, kinesthetic and tactile elements that we have already talked about, and it is taught like in the strategy to incorporate all the senses in the teaching learning process to activate different parts of the brain simultaneously, enhancing memory and learning of the written language. See, जब हम you know very well, हमारी जो सारी सेंसेस हैं ब्रेन के साथ कनेक्टेड है, ब्रेन उनके साथ कनेक्टेड है, कैसे वो हमारी न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज जाता है। अगर हम मैं चलते हुए भी किसी पाँव में कांटा चुभ गया है, बात कर रही हूँ, अचानक से भी किसी गरम गरम चीज से हाथ लग गया है, अचानक से उस जो स्टिमुलस का रिस्पॉन्स होता है, बिना देखे भी हम एक्ट करते हैं, वो क्या है? हमारे जो ब्रेन का रिस्पॉन्स होता है उसमें, ठीक है? सो यू नो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी हमारी जो मसल्स होती हैं, वो एक अलग से जो फिनोमिना जो भी है, मतलब कि किसी ना किसी तरीके से हम जो कनेक्टेड हैं, हमारे जो सेंसेस हैं, तो जब हम सारी सेंसेस को इन्वॉल्व करते हैं तो ब्रेन के जो डिफरेंट पोर्शंस हैं वो एक्टिवेट होते हैं, राइट? जैसा कि कहते हैं कि मैंने अगर कोई चीज सुनी तो मेरे ब्रेन का एक और पोर्शन कोई एक्टिवेट हुआ, मैंने उसको ड्रॉ किया करा, तो मेरा, जैसे हम बात करते हैं ना कि हमारे ब्रेन के 2 पोर्शन हैं, राइट? एक क्रिएटिव पोर्शन है, एक लॉजिक से रिलेटेड जो है वो पोर्शन है, राइट? राइट एंड लेफ्ट ब्रेन की जो हम बात करते हैं कि कैसे वो एक्टिवेट होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही डिफरेंट सेंसेस से जब हम परसीव करते हैं चीजों को, देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, वी डू ऑल्सो किनेस्थेटिकली पार्टिसिपेट करते हैं, तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन वो एक्टिवेट होते हैं, तो वो लर्निंग क्या होती है? बेटर होती है। इट हेल्प्स लर्नर्स डिस्कवर व्हाट लर्निंग स्टाइल्स फिट देम बेस्ट। लर्नर्स को रिकॉग्नाइज वो कर पाते हैं कि उनका लर्निंग स्टाइल कौन सा है, कौन सा लर्निंग स्टाइल जो है उनके लिए फिट बैठता है, वो कैसे ज्यादा अच्छे से चीजों को समझ सकते हैं। इट प्रोवाइड्स मोर वेज फॉर अंडरस्टैंडिंग न्यू इंफॉर्मेशन, मोर वेज टू रिमेंबर इट एंड मोर वेज टू रिकॉल इट लेटर। लाइक वी कैन अंडरस्टैंड, we can remember, we can recall. It integrates visual, auditory, tactile, and kinesthetic movement, and different teaching methods activate different parts of the brain. It helps learners discover their learning styles, for the techniques that best suit them. It's effective for the learners, but particularly effective for disabled children. It can be used in any subject from reading to mathematics to science to drama, and it allows for more individualized lesson planning. When we are creating lesson planning, when we are adding different styles of teaching learning strategies catering to the different learners, visual, auditory, kinesthetic, tactile learners, so accordingly we add different kinds of activities in our lesson plan so that we are able to understand the needs of each type of learner. जब हम disability की बात करते हैं, in an inclusive classroom हमारे पास जो students हैं, they are coming with different backgrounds, different types of disabilities, right? कुछ ऐसे बच्चे हैं
जिन्होंने ना सूर्य को कभी उदय देखा है होते हुए, ना कभी रात का अंधेरा देखा है, उनके लिए तो सब कुछ अंधेरा है, राइट? सूर्य उदय या सूर्य अस्त उसके उनके लिए एक बराबर है, वो देखा नहीं। ऐसे बच्चे जिन्होंने कभी वो पक्षियों की चहचहाट नहीं सुन पाए, हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, विजुअल इम्पेयरमेंट है, जिन्होंने अपनी मीठी प्यारी वाणी से कभी दो शब्द उच्चारण नहीं जो कर पाए, राइट? जो स्पीच प्रॉब्लम है, नहीं बोल पाते हैं, राइट? सो उन सब डिफरेंट डिफरेंट बच्चों की जो नीड्स हैं उनको केटर करते हुए हमें अपनी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें ऐसी एक्टिविटीज इन्वॉल्व करनी कि डिफरेंट सेंसेस इन्वॉल्व हो। एटलीस्ट जो बच्चा देख नहीं सकता वो सुनकर कनेक्ट कर पाए, जो सुन नहीं सकता वो साइन लैंग्वेज के साथ या देखकर उन चीजों के साथ कनेक्ट कर पाए, राइट? तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट सेंसेस को इन्वॉल्व करेंगे इन मल्टी सेंसरी टीचिंग। सो मल्टी सेंसरी टीचिंग एंड लर्निंग की जो टेक्निक्स है हम उनके बारे में बात करेंगे। द फर्स्ट वन इज अ विजुअल टेक्निक। The use of vision in teaching runs from reading of text। चाहे हम सोचे कि जो आप स्क्रीन पर अभी टेक्स्ट देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, इमेजेस देख रहे हैं, अगर मैं आपको कोई क्लिप आर्ट दिखाऊं, पेंटिंग्स दिखाऊं, वीडियोस आप देख रहे हैं, राइट? क्रिएटिव विजुअल डिजाइन एलिमेंट, डिफरेंट डिफरेंट चीजें, विजुअल में तो सब कुछ आता है, खाली हम टेक्स्ट की बात नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन अबाउट गवर्नमेंट दैट रिजल्ट्स इन अ विजुअल मैप linking the ideas of democracy, monarchy, and other forms of government can be very effective outline for a future written research paper or the poster। आपने एक पोस्टर प्रेजेंट करना है, आपने एक पेपर लिखना है, उस चीज के लिए यू नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंटेंट, ठीक है? आपके लिए जो इमेजेस हैं आप उसको रिकॉल कर पा रहे हैं, आप जो देखते हैं मूवीज हैं, कुछ भी, कैसे वो चीजों को आप कनेक्ट कर पाते हैं, राइट? सो विजुअल एड्स कैन आल्सो हेल्प सप्लीमेंट ऑडिटरी और टेक्टाइल लर्निंग, राइट? जो सुन भी सकते हैं साथ में, अगर हमने सुनने के साथ में, हियरिंग के साथ में जब विजुअल्स देखे, यू नो वेरी वेल, आई हैव जस्ट शेयर्ड विद यू कैसे जो हमारी रिटेंशन है वो इंक्रीज होती है। ओके, सो लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हमने कोई बच्चों को कोई फिनोमिनन एक्सप्लेन किया है, कोई एक्सपेरिमेंट के स्टेप्स हैं, सिर्फ लिखकर प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप बताने के साथ साथ अगर हम उसकी इमेजेस को भी उसमें ऐड कर दें तो वो अंडरस्टैंडिंग बेटर होता है। दैट इज विजुअल। एक सिंपल सी और भी उदाहरण लें, लाइक निटिंग या सोइंग में अगर डिफरेंट स्टेप्स है, लाइक फैशन स्टडीज में अगर किया जाता है सिर्फ वो स्टेप्स लिखना कि ऐसा कर दो, फोल्ड कर दो, मोड़ दो, बना लो, सिल लो, और उसके साथ साथ वो उसका प्रेजेंटेशन भी जब पिक्टोरियल होता है तो रिटेंशन बेटर होती है, रिजल्ट्स इफेक्टिव होते हैं। है ना? मल्टी सेंसरी लर्निंग टेक्निक्स में बात करते हैं हम ऑडिटरी टेक्निक की, सुनने की, राइट? तो स्पेसिफिक एग्जांपल्स ऑफ ऑडिटरी लर्निंग इंक्लूड यूज ऑफ म्यूजिक, सिंगिंग, राइम्स, ऑडियो टोन्स, लिरिक्स, क्लैपिंग्स, डायलॉग, एंड दैट इन्वॉल्व्स द फंक्शन ऑफ ईयर्स। सो आप उसके थ्रू अपनी टीचिंग लर्निंग जो मेथोडोलॉजी है उसको इफेक्टिव कर सकते हैं। नाउ मल्टी सेंसरी लर्निंग टेक्निक्स में नेक्स्ट इज टेक्टाइल टेक्निक, सेंस ऑफ टच, राइट? कौन बच्चों को पढ़ाते हैं, हार्ड है या सॉफ्ट है, वो टच करके चीजों को फील करते हैं, रफ है, स्मूथ है, राइट? एनीथिंग इन्वॉल्व्स टच इज टेक्टाइल लर्निंग, ऑफ्टन ओवरलैपिंग विद किनेस्थेटिक लर्निंग। कहीं कहीं ये ओवरलैप करती है किनेस्थेटिक के साथ, क्योंकि किनेस्थेटिक में भी क्या है, बॉडी का इन्वॉल्वमेंट है, टेक्टाइल में भी क्या है, बॉडी का इन्वॉल्वमेंट है, बट टेक्टाइल में सिर्फ टच करते हैं, किनेस्थेटिक में मूवमेंट से रिलेटेड है। स्पेसिफिक टेक्टाइल टेक्निक्स इंक्लूड यूज ऑफ लेटर टाइल्स, हाथ करके टच करके हम लेटर्स को, उनकी शेप्स को आंखें बंद करके भी हम महसूस कर सकते हैं। पेंट्स, उनका टच की कैसे है, सैंड है, रेज्ड लाइन पेपर है, रूब्रिक क्यूब है, उसके हम एंगल्स, उसका हम जो स्पेसिंग है उसको फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। क्ले मोल्डिंग है, जिन चीजों को हम टच करके फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सब चीजें किस में आती हैं, टेक्टाइल लर्निंग में। तो एटलीस्ट बच्चे उसको महसूस करें, टच करें, फील करें, शेप कैसी है, राइट? वो महसूस कैसा होता है, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, किस तरीके से उसको समझेंगे। नाउ किनेस्थेटिक टेक्निक की जब हम बात करते हैं, किनेस्थेटिक learners they learn by motion, they learn by doing, using both fine and gross motor skills। एक हमारी फाइन मोटर स्किल्स होती हैं जिसमें हम यूज करते हैं ओनली
हमारी छोटी छोटी मसल्स को लाइक पेंटिंग करते हैं, लिखते हैं, ड्राइंग करते हैं, लाइक कहीं पे कुछ कार्विंग का काम करते हैं, तो वो सब चीजें होंगी। ग्रॉस मोटर स्किल्स जिसमें हम जंपिंग, बॉडीली जो भी हमारी डिफरेंट मूवमेंट ऑफ हमारी जो लॉन्गर मसल्स हैं हम उसका इस्तेमाल करते हैं, right? Though sometimes also called tactile learners, we would like to distinguish between the two, as I've already told you, because motion and touch, they are not the one and the same. Kinesthetic learners जो होते हैं वो अपनी सेंसेस को ऐसे यूज करते हैं, लाइक स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज, जंपिंग, मूविंग फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर, वॉकिंग, कुछ भी जो गेम्स हैं, डिफरेंट हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं उसमें पार्टिसिपेट करना, राइट? और हम छोटे बच्चों को देखिए, हम बच्चों को जब कॉन्सेप्ट सिखाते हैं कि कैसे लिखना है, हम उनको एयर ट्रेसिंग भी बनाते हैं। ए लिखना है तो ट्रेस इन द एयर, या फिर और कैसे मूवमेंट करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को एक प्लेट में सपोज सैंड है या उसमें सॉल्ट है या सेमोलिना उसमें डाला है, तो उसमें वो प्लेट के अंदर ही वो ऐसे ट्रेस करके लिखते हैं। हम छोटे छोटे गेम भी तो खेलते हैं, जैसे बॉडी के पीछे की लिखते हैं कि 1 है 2 है, आपको गेस करो कि व्हाट इज बीइंग रिटन, मूवमेंट लाइक बॉडी मूवमेंट। तो इस तरीके से एयर ट्रेसिंग या कुछ राइटिंग कुछ उसके थ्रू हम बच्चों को सिखाते हैं, दैट इज उनकी हम उन सेंसेस को भी इन्वॉल्व करते हैं थ्रू मूवमेंट, राइट? छोटे बच्चों की अगर हम बात करें तो, बड़े हैं तो उनको और डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया जा सकता है। बट यू कैन अंडरस्टैंड, चाहे वो क्लैपिंग है, चाहे वो जंपिंग है, राइट? ये सब डिफरेंट एक्टिविटीज किस में आती है? किनेस्थेटिक लर्निंग में। चाहे वो पुश पुल की एक्टिविटी करा रहे हैं, चाहे फोर्स को समझा रहे हैं, राइट? क्रिकेट की ग्राउंड में जाकर चाहे वो हम उसको स्पीड समझा रहे हैं उसको कि हाउ दे आर थ्रोइंग इट, तो मूवमेंट, बॉडी का मूवमेंट उसमें इन्वॉल्व होता है। दे आर द किनेस्थेटिक लर्नर्स। सो मल्टी सेंसरी लर्निंग के एडवांटेजेस के बारे में जरा बात करते हैं। वी लर्न विद आवर होल बॉडी, डिफरेंट सेंसेस को हम इन्वॉल्व करते हैं। वी हैव अ मल्टी सेंसरी ब्रेन। एट द मोस्ट बेसिक लेवल आवर ब्रेन perceives stimuli through the 5 senses। जैसे हम स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं, स्टिमुलस कहाँ आता है? हम 5 सेंसेस के थ्रू आता है। देखते हैं, कुछ देखा है तो स्टिमुलस गया, उसका रिस्पॉन्स आता है ब्रेन से, ये खूबसूरत है, ये सुंदर है, ये अट्रैक्टिव है, राइट? यहाँ पर थोड़ी गंदगी है, वो हमने देखा, या कहीं से स्मेल आई है, लाइक बहुत अच्छी खुशबू आ रही है या नहीं अच्छी आ रही है, कानों को कोई राग, संगीत, कुछ म्यूजिक कुछ अच्छा लगता है, लाइक उसका रिस्पॉन्स आता है ब्रेन के थ्रू। कुछ खाते हैं, टेस्ट आता है, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, उसका रिस्पॉन्स आता है ब्रेन से। कोई गर्म ठंडे को हाथ लगा दिया, राइट, हाथ जल गया, कहीं चोट लग गई, कांटा चुभ गया, तो उसका रिस्पॉन्स आता है। तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं? मल्टी सेंसरी हमारा जो ब्रेन है, हम 5 जो हमारी इंद्रियां हैं उनके थ्रू हम रिसीव करते हैं, और उसका फिर रिस्पॉन्स आता है ब्रेन के थ्रू, राइट? सो उस ये है क्या इसकी एडवांटेज कि हम जितनी ज्यादा सेंसेस को इन्वॉल्व करेंगे उतनी बेटर लर्निंग होगी, राइट? मल्टी सेंसरी टीचिंग इज एन interactive experience for students. In practice classroom activities create an enjoyable learning environment for the students. Students say enjoy, that is learning by through different activities, or you can talk about joyful learning as well. Students learn when they are young using multiple senses, right? To process new information, they learn by doing, like they learn by exploring, by discovering ये क्या है। हम छोटी छोटी चीज, चाहे वो मिट्टी के घर ही बनाना है, उसमें इन्वॉल्व करके उसकी शेप देखें, चाहे वो खाना खाते हुए उसमें ऑब्जर्व करें कि ब्रेड की शेप क्या है, स्क्वायर है, अब काट दिया है बीच में तो ट्राइंगल हो गई है, 2 ट्राइंगल्स दे मेक अ स्क्वायर। आई मीन किस तरीके से दे आर कनेक्टिंग, छोटी छोटी चीज की, छोटी छोटी चीजों की ऑब्जर्वेशन है, कैसे वो कनेक्ट करते हैं। मल्टी सेंसरी टीचिंग अलाउज द स्टूडेंट्स टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द लर्निंग प्रोसेस, बहुत एक्टिवली वो पार्टिसिपेट करते हैं, राइट? And students, they have different learning styles. Multi-sensory teaching is ideal for the students of any learning style. किसी भी learning style का बच्चा है, तो अगर आपने different activities ऐसे plan की है to cater to the different learners, तो obviously आपका जो लेसन प्लान है वो एक कंप्लीट लेसन प्लान है। उसमें आपने डिफरेंट एक्टिविटीज पहले ही प्लान की है, तो एवरी चाइल्ड फाइंड्स कि ये लेसन प्लान मेरे लिए डिजाइन किया गया है, ये एक्टिविटी स्पेशली मेरे लिए बनाई गई है कि मैं उसको एंजॉय कर पाऊं, राइट? सो and apart from it, multisensory teaching provides more ways for understanding new information, more ways to remember it, and more ways to recall it. चीजों को समझने के डिफरेंट तरीके, उसको रिकॉल करने के, उसको समझने के, उसको याद रखने के। मल्टी सेंसरी टीचिंग इंटीग्रेट्स
चारों तरह के एलिमेंट्स होते हैं इसमें, विजुअल है, ऑडिटरी है, टेक्टाइल है, किनेस्थेटिक है। मल्टीसेंसरी टीचिंग इज इफेक्टिव फॉर ऑल द लर्नर्स बट particularly effective for dyslexic students. Dyslexic students typically they have difficulty in absorbing the new information, especially वो उसको समझ नहीं पाते हैं, उनके लिए वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, उसको मेमोराइज करना, उसके डिफरेंट स्टेप्स को समझना। पर जब हम उसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन क्या करते हैं वो देखकर समझते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन को सुनकर समझ लें, उसको ब्रेक कर लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, तो उनके लिए ये बेटर होता है टू अंडरस्टैंड इट राइट इन डिफरेंट पार्ट्स, right? And teachers can evaluate students with different strengths to play different roles. उनके different roles के accordingly teachers उनको students को identify कर सकते हैं. Like for example, a child who is having difficulty with spellings, तो उसकी picture जो है वो बच्चा draw कर सकता है, board के ऊपर drawing कर सकता है अगर spelling में दिक्कत है. अगर कोई बच्चा जो है सपोज स्ट्रॉन्ग रीडर कैन बी असाइंड टू स्पेल, जो रीडर अच्छा है तो उसको हम स्पेलिंग बताने के लिए कह सकते हैं। आई मीन डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू हम बच्चों को उन चीजों में इन्वॉल्व कर सकते हैं। एंड इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम स्टूडेंट्स आर ऑफ्टन डिवाइडेड इनटू स्मॉल लर्निंग ग्रुप्स विद स्पेशल नीड्स। जो स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं उनको डिफरेंट ग्रुप्स में जब डिवाइड किया जाता है, आई मीन एक ग्रुप में जो स्टूडेंट्स हैं दे बिलोंग टू different learning styles, maybe different abilities also, right? तो वो एक दूसरे की हेल्प कर पाते हैं, they learn from each other, दूसरे की जो strength है उससे वो सीखते हैं, right? And the students in an inclusive classroom, they complete the activities together, which enable important social interaction between special education and general education students. जब एक ग्रुप में बच्चे हैं with different capabilities, different interests, different abilities, तो वो एक दूसरे की स्ट्रेंथ से, एक दूसरे के लर्निंग स्टाइल से सीखते हैं एंड लर्निंग बिकम्स बेटर। इंटरेक्शन होता है तो कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होती हैं, सोशल जो स्किल्स हैं उनकी वो एनहांस होती हैं। डिसेबिलिटी can often be a cause for decreased sensory input. A child with a physical disability does not get the opportunity, physical disability है जिसकी, उसको opportunity नहीं मिल पाती हर एक चीज को टच करके, फील करके समझने की। They do not get the, I mean, दूसरे बच्चों की तरह उतना मूव करके किनेस्थेटिक लर्नर्स तो वो नहीं हो सकते हैं। चिल्ड्रन जिनको हियरिंग प्रॉब्लम है, जिनको विजुअल प्रॉब्लम है, दे आर ऑफन कट आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो उन चीजों को महसूस नहीं कर पाते। एटलीस्ट क्लास में अगर एक्टिविटीज ऐसी हो कि उनकी बाकी जो सेंसेस हैं वो इफेक्टिवली यूज हो पाए, तो ये इंक्लूसिव क्लास का एक बेसिक मंत्र है टू गो हैड विद multi-sensory teaching learning process. So my lovely educators, let's implement the same in our normal classes too, because children, they are there for various learning styles, right? उनका अपना पढ़ने का, देखने का, समझने का एक नजरिया है, तो अगर हम different activities उसमें इन्वॉल्व करेंगे तो बच्चे बेटर समझेंगे। Students with sensory integration challenges sense information normally but have difficulty perceiving and processing that information because it is analyzed in their brains in different way. मैं एक चीज पढ़ा रही हूँ, वो जिस नजरिए से उसको मैं देख रही हूँ, मैं समझ रही हूँ, जरूरी नहीं मेरी क्लास के 40 बच्चे उसको वैसे ही समझें। हर एक बच्चे का परसीव करने का, समझने का मेंटल प्रोसेस जो होते हैं वो उनके डिफरेंट होते हैं। तो अगर हम डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को थ्रू पढ़ाएंगे तो हर एक बच्चा उसके साथ कनेक्टेड फील करेगा एंड करिकुलम जो है हम बड़े अच्छे से डिलीवर कर पाएंगे, तभी हम अपनी लर्निंग आउटकम्स जो है वो अचीव कर पाएंगे, right? So this is really very important. So my dear educators, if you want to know more about such strategies to make your classrooms better learning spaces, so that there should be something very amazing, interesting in your class, you want to increase the wow factor, the aha moment in your classes, you need to subscribe to my channel. Don't forget to share these videos in your community as well. And I would be looking forward to reading your valuable comments in the comment section below. Thank you and have a nice day from Meenakshi Nerula.